अब तकरीबन थ्रू आउट जितने भी हमारे सेशंस रहते हैं, उन सारे सेशंस में ये जो पिक्चर होगी हमारी, ये जो एक रिसर्च प्रोसेस की पूरी एक फिगर है, इसको हम हर चैप्टर के शुरू में जो है वो थोड़ा-सा इसका ओवरव्यू ले लिया करेंगे, ताकि वी कम टू नो कि व्हाट व्हाट द वर्क दैट वी हैव डन एंड व्हाट द वर्क दैट वी आर डूइंग एंड व्हाट द वर्क इज़ रिमेनिंग. So from that picture, it is very clear. Today, we people are going to study the step number 4 and step number 5. Like you can see over here, that we are going to read step 4 and step 5. And these all things I have taken from the book of Uma Sikaran. So if you find any difficulty, you can consult the book of Uma Sikaran. In the previous lecture, we discussed three things. We talked about the observation, and in observation we mainly discussed the broad problem area. After discussing broad problem area, we've seen how we can collect the data, but that data is not a data collection, that is a preliminary data collection. Preliminary data gathering means the data that helps us to understand the problem, what the problem is. Through this data gathering we can understand the problem, and we were divided this data gathering procedure into two portions. The one was interviewing and other was literature review. So we perform two functions over in the preliminary data gathering. One is interviewing and one is literature survey. Then finally, the step 3, we have seen that once we develop the observation, once we develop the broad problem area, then we pass that broad problem through our interview and literature survey, and then we finally in the position that can we define our problem. After these first two steps, we would be in the position that we can define our problem, we can state our problem. This is the reason we may call it problem definition or problem statement. Right now, today we are at the stage that we have defined our problem. I don't know कि आपने किया है कि नहीं. मैंने आपको एक assignment भी दिया था, सिवाय जुहेब के मेरे साथ किसी ने शेयर नहीं किया. खैर, काम किया करें जो मैं देता हूँ. अच्छा, problem definition means के you are fully understand that what is the problem that is existing in the organization, right? At that level, when you were defining the broad problem area, you were unclear about the problem. You were having the broad view of your problem. You didn't had seen the details of your problem. But at the point number 3, when you define your problem, when you state your problem, you are in the position that you are fully confident that I know my problem. What the problem that is existing in my organization, I am fully aware of it, right? So after the problem definition, two steps, and we are going to study today. The fourth one is theoretical framework. In theoretical framework, what we do, we develop variables, right? We develop variables and we generate hypotheses. In step 4 and step 5, today we are going to perform these two steps. In step 4, which is basically a theoretical framework, in theoretical framework, we define our variables. What variables? Which we were came to know through preliminary data gathering. Means when we were not clear about our problem, when we were not sure about the details of the problem, we did data gathering. We asked from the employees, we asked from the other stakeholders, we searched from the book, we searched from the internet, we asked from the other companies, we searched the reports, we analyzed our company reports. And after these all knowings, or after these all data gatherings, we come to know that what are the important variables that we are supposed to interlink with each other. Means theoretical framework is basically defining the variables and interlinking of the variables. Like जैसे मैं आपके साथ एक शेयर करता हूं theoretical framework. एक मिनट जी.
सी, जब आप रिसर्च कर लेते हैं ना, तो रिसर्च आपकी जो है वो इस शक्ल में छपती है। जैसे ये मेरा एक रिसर्च पेपर है, ठीक है, ये रिसर्च पेपर मैंने लिखा और ये 2017 में ये रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ। कहां पर पब्लिश हुआ? पाकिस्तान जर्नल ऑफ सोशल साइंसेस, राइट। तो ये एक पाकिस्तानी जर्नल है, उसके अंदर मेरा पेपर एक्सेप्ट हुआ और लिखा गया। ये देखें, ये प्राइमरी ऑथर मैं हूं, फर्स्ट ऑथर मैं हूं, और इसके साथ और भी ऑथर थे, उनके भी नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम डिस्कशन है, और आफ्टर डिस्कशन द प्रॉब्लम, ये हमारा क्या है? थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है हमारा। इसको हम कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क भी कहते हैं और इसको हम थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क भी कहते हैं। तो ये हमारा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क डेवलप हुआ। इसके अंदर आप देखिएगा कि ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ये भी, ये सारे क्या हैं? ये वेरिएबल्स हैं। तो आज हमने एक तो वेरिएबल्स को पढ़ना है, और एक हमने थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क को पढ़ना है, और एक हमने हाइपोथेसिस को पढ़ना है, ठीक है। तो दो तीन चीजें पढ़नी है। पहले तो अंडरस्टैंड कर लें कि वेरिएबल्स क्या हैं। जब हमने अपनी प्रॉब्लम को, वी एनालाइज द प्रॉब्लम, वी गैदर द डेटा, वी लिटरेचर रिव्यू। देखें, जैसे मैं आपको लिटरेचर रिव्यू भी दिखा देता हूं, ठीक है। दिस इज लिटरेचर रिव्यू, लिटरेचर सर्वे, ठीक है। ये लिटरेचर सर्वे किया गया और उसमें डिफरेंट फाइंडिंग्स की गई, और उस डिफरेंट फाइंडिंग्स की बेस पर ये जो एक मॉडल है, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क जो है, ये एक डेवलप किया गया। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क भी इसको कहते हैं, क्योंकि थ्योरेटिकल और कॉन्सेप्चुअल में फर्क क्या होता है ये हम आगे जाके देखेंगे, अभी इस पे हम बात नहीं करते, अभी हम उनको सेम ही मान के चल रहे हैं। तो ये सारे क्या हैं? ये वेरिएबल्स हैं, राइट। अच्छा, अब इन वेरिएबल्स के अंदर ये जो लेफ्ट साइड पे होता है, अमूमन राइट पे भी लिख सकते हैं, दैट इज नॉट अ मैटर, बट समझने वाली बात ये है, ये जो आपको नजर आ रहा है, जिसकी तरफ से इंपैक्ट निकल के दूसरी तरफ जा रहा है, बेसिकली लेफ्ट राइट लिखने से फर्क नहीं पड़ता, ये जो एरोज होते हैं ना, ये डिफाइन करते हैं। यानी यहां से एरो निकलकर इस तरफ को जा रहा है, इसका मतलब कि ये जो सोशल नेटवर्क आपको नजर आ रहा है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। और जिस वेरिएबल के ऊपर ये एरो गिर रहा होता है, वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है। बात फॉलो कर रहे हैं सब लोग? यस सर। जी, यस सर। ठीक हो गया। अब इस केस में ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये डिपेंडेंट वेरिएबल, ये भी क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल, राइट। क्योंकि ये किस पर डिपेंड कर रहे हैं? इस पर। तो ये इंडिपेंडेंट है और ये डिपेंडेंट है। आमतौर पे हम तरतीब यही रखते हैं, लेफ्ट साइड पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को रखते हैं और राइट साइड पे डिपेंडेंट वेरिएबल्स को रखते हैं। लेकिन अगर मैं किसी तरह इस मॉडल को उल्टा के उधर कर दूं तो फर्क कोई नहीं पड़ेगा। फर्क क्या पड़ेगा? ये एरोज हमें बताएंगे कि ये इनमें से इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ये डिपेंडेंट वेरिएबल्स। अच्छा, अब ये जो एक आपको तरीकाकार है, ये जो आपको एक नजर आ रहा है, जो अमूमन ऊपर की तरफ से एक इंपैक्ट डाल रहा है, यानी ये दो रिलेशनशिप हैं, सोशल नेटवर्क और टीम बिल्डिंग के अंदर एक रिलेशनशिप है, और इस रिलेशनशिप को इंपैक्ट कर रहा है दोनों के रिलेशनशिप को। इसको हम कहते हैं मॉडरेटर वेरिएबल। ये सारा हम पढ़ते हैं, सारी डिटेल देखते हैं, लेकिन इट इज जस्ट फॉर पिक्चर व्यूइंग, के आपको जरा समझ आ जाए कि पिक्चर कैसी होती है इसकी। अच्छा, ये सोशल नेटवर्क और टीम बिल्डिंग, सोशल नेटवर्क इंडिपेंडेंट वेरिएबल, टीम बिल्डिंग डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये जो आपको दोनों के रिलेशन में एक वेरिएबल अपना इंपैक्ट करता हुआ नजर आ रहा है, इसको कहते हैं मॉडरेटर। ठीक हो गया? अगर यही सिचुएशन हो, इसी सिचुएशन में हम थोड़ा सा इस सिचुएशन को जो है वो अगर मॉडिफाई करें, अगर ये रिलेशन इस तरह से बन जाए, दिस वन, कि ये इधर जाए और यहां से एक रिलेशन इधर आए और ये इस तरह से बन जाए, राइट। अब ये क्या है? अब ये रिलेशन बन गया कि सोशल नेटवर्क इंडिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट। इस केस में ये वाला इंडिपेंडेंट और टीम बिल्डिंग डिपेंडेंट। इस रिलेशनशिप में सोशल नेटवर्क इंडिपेंडेंट
और टीम बिल्डिंग डिपेंडेंट। लेकिन अगर हम ओवरऑल इसको देखें तो ये जो परसेप्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स आपको नजर आ रहा है, इसको हम मीडिएटर कहेंगे। किसके दरमियान मीडिएटर? सोशल नेटवर्क और टीम बिल्डिंग के दरमियान। तवज्जो, दोबारा बताता हूं। इस केस में ये जो केस आपको नजर आ रहा है, सोशल नेटवर्क और टीम बिल्डिंग के रिलेशनशिप के ऊपर एक और वेरिएबल इंपैक्ट कर रहा है, इसको कहते हैं मॉडरेटर। ठीक हो गया? एक वेरिएबल इंपैक्ट कर रहा है, इसको कहते हैं मॉडरेटर। यानी इसका रिलेशनशिप जो है वो इस तरह से होता है। ये क्या है? एक वेरिएबल ये आ गया, एक वेरिएबल ये आ गया, इन दोनों के दरमियान एक रिलेशनशिप था। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। और अगर इन दोनों के दरमियान में किसी रिलेशनशिप को कोई वेरिएबल इंपैक्ट कर रहा है तो उसको हम कहते हैं मॉडरेटर। ठीक है, उसको हम कहेंगे मॉडरेटर। जैसा कि ये केस आपको नजर आ रहा है कि ये परसेप्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स जो है, सोशल नेटवर्क और टीम बिल्डिंग का मॉडरेटर भी है, और सोशल नेटवर्क और एटीट्यूड टुवर्ड्स नॉलेज शेयरिंग का भी मॉडरेटर है। ठीक हो गया? यहां तक क्लियर है? ये हम मॉडरेटर, ये मॉडरेटर को बनाने की शक्ल है। इसके बाद अगर कोई वेरिएबल इस तरह से हो कि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये डिपेंडेंट वेरिएबल, और इनके दरमियान में एक और वेरिएबल, अब रिलेशनशिप इनके दरमियान में से गुजर के फिर जा रहा है इस तरह। यानी ये पहले इस पे इंपैक्ट करेगा, फिर ये इस पे इंपैक्ट करेगा। तो अब इनका जो रिलेशनशिप बना है, ये वाला वेरिएबल क्या कहलाएगा? ये मीडिएटर कहलाएगा। ठीक हो गया? इनके में भी मैं सिर्फ नाम बता रहा हूं, समझा नहीं रहा ये होता क्या है, कैसे काम करते हैं। आई एम टेलिंग यू नथिंग, आई एम जस्ट टेलिंग यू के हाउ वी ड्रॉ दीज वेरिएबल्स। ठीक है? ये मीडिएटर है और इस केस में ये क्या है? ये मॉडरेटर है। यहां तक मुझे बताएं, क्लियर है सारी बात? यस सर, क्लियर है। चल, ओके माय डियर्स, यही मैं आपसे गुजारिश कर रहा था कि आज हम जो है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के बारे में बात करेंगे, बेसिकली जिसमें हम वेरिएबल्स की बात करते हैं और हम हाइपोथेसिस की बात करेंगे। हाइपोथेसिस क्या होते हैं वो भी मैं आपसे शेयर करता हूं जी। तो इसके अंदर हम बात कर लेते हैं व्हाट इज थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। तवज्जो, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क इज द फाउंडेशन, एक बुनियाद है, ऑन विच इंटायर रिसर्च प्रोजेक्ट इज बेस्ड। मैं आपसे कह दूं कि ये जो इस वक्त थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है, ये जो आपको नजर आ रहा है, ये मेरे पूरे रिसर्च का आप कह लें कि फाउंडेशन है। इसके बगैर मेरे रिसर्च की कोई वुकत नहीं है। द थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क इज द फाउंडेशन ऑन विच इंटायर रिसर्च प्रोजेक्ट इज बेस्ड। यानी अगर आपको अपने वेरिएबल्स के दरमियान एक कनेक्शन ही नहीं बनाना आया, आपको समझ ही नहीं आई कि किस वेरिएबल का किसके साथ कनेक्शन है, तो इसका मतलब कि आपका प्रोजेक्ट इज नथिंग। ये लॉजिकली डेवलप किया जाता है, लॉजिकली डेवलप किया जाता है। क्या मतलब? लॉजिक का क्या मतलब है? लॉजिक का मतलब ये है कि ये वाला जो है, दिस वन, ये वाला रिलेशन ऐसे ही बनेगा, ये वाला रिलेशन ऐसे ही बनेगा, ये रिलेशन ऐसे नहीं बनेगा, या ये रिलेशन ऐसे नहीं बनेगा, या ये रिलेशन ऐसे नहीं बनेगा। अगर बनता होगा तो हमें इसके पीछे लॉजिक देनी पड़ेगी। ठीक है? तो लॉजिक हमें तलाश करनी पड़ती है। अगर तो लॉजिकली ऐसा कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता होगा तो ऑब्वियसली हम लॉजिकल रिलेशनशिप ला के हम ये एरोस के रुख बदल सकते हैं। अगर इनके दरमियान कोई लॉजिकल रिलेशन ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता तो हम उसको नहीं कर सकते। तो लॉजिकली रिलेशनशिप्स का आपस में एग्जिस्ट करना बहुत जरूरी होता है। द थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क एलैबोरेट्स द रिलेशनशिप अमंग वेरिएबल्स। बेसिकली थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क करता क्या है? रिलेशनशिप्स वेरिएबल्स के दरमियान जाहिर करता है, एक्सप्लेन्स द थ्योरी। ये जो मैं कह रहा हूं ना कि ये वेरिएबल्स इसके साथ रिलेट कर सकता है या नहीं कर सकता, ये हमें कहां से पता लगता है? ये हमें थ्योरी से पता लगता है। बेसिकली हमें थ्योरी बताती है कि कौन सा रिलेशनशिप किसके साथ बनेगा।
एंड डिस्क्राइब्स द नेचर एंड डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप, और हमें रिलेशनशिप और डायरेक्शन की भी जो है वो ख्याल रखना पड़ता है। यानी ऐसे नहीं है कि जिस मर्जी एरो का रुख आप जिस तरफ कर दें, नहीं, there should be some logical and theoretical relationship between the variables, and you can use only those relationships that can exist, or those relationships that you can prove your data analysis. इंपॉर्टेंस हमने देख लीजिए कि ये फाउंडेशन है, बुनियाद है, इसके बगैर रिसर्च जो है वो पॉसिबल नहीं है कि वो रिसर्च हमारी रिसर्च हो। It becomes evident at this stage to arrive at a good solution to the problem. कोई भी बंदा, कोई भी रिसर्चर उस वक्त तक एक अच्छे सोल्यूशन तक नहीं पहुंच सकता जब तक वो एक अच्छा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क ना डिफाइन कर दे। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क मैं दोबारा से बता दूं, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के अंदर आपको वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप तलाश करना है, आपको थ्योरी के साथ उसका रिलेशनशिप तलाश करना है, देन यू वुड बी इन अ पोजीशन दैट यू कैन हैव अ गुड थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। यानी आपने यहां पर जो अपने ब्रॉड प्रॉब्लम देखा, यानी ब्रॉड प्रॉब्लम क्या था कि सपोज जी हमारी रिसर्च अपना हमारा लोग बहुत छोड़ के जा रहे हैं, लोग छोड़ के जा रहे हैं, हमने डेटा गैदरिंग की, लिटरेचर सर्वे किया, और फिर हमें पता लगा कि एम्प्लॉइज के दरमियान कमिटमेंट लो हो गई है जिसकी वजह से लोग छोड़ के जा रहे हैं। ये हमारी प्रॉब्लम डेफिनेशन हो गई। अब थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क ये है कि व्हाट आर द वेरिएबल्स दैट आर बिकमिंग द रीजन ऑफ द थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, दैट आर बिकमिंग द रीजन ऑफ लो कमिटमेंट। यानी ये कुछ इस तरह का रिलेशनशिप बनेगा। अगर मैं आपको यहां पर ड्रॉ करके बताऊं, सपोज कर लेते हैं जी, ये नहीं, दिस वन नहीं, ओके सी, सपोज कर लेते हैं कि हम इस रीजन पर पहुंचे कि हमारे एम्प्लॉय के दरमियान जो लो कमिटमेंट थी ना, लो कमिटमेंट की बहुत सारी रीजंस हैं, ठीक है, ये रीजंस, इस तरह से हमारी लो कमिटमेंट की कोई रीजंस नजर आ रही है। यहां पे कोई भी वेरिएबल्स हो सकते हैं, कोई भी, राइट। अब ये जो वेरिएबल्स हमने निकाले हैं, ये हमें कहां से पता लगे? ये हमें इंटरव्यू से और लिटरेचर रिव्यू से पता लगे। जब हमने इंटरव्यू और लिटरेचर की मदद से इस तरह का रिलेशनशिप ड्रा कर दिया तो हम कहेंगे कि ये हमने थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क ड्रॉ कर दिया। ऑब्वियसली ये जो वेरिएबल्स आएंगे, ये जो रीजंस आएंगी हमारे सामने, ये किसी ना किसी थ्योरी में एग्जिस्ट करती होंगी। थ्योरी का एग्जिस्ट करना लाजमी है। थ्योरी आपको पता है, थ्योरी पहले से मौजूद जो आप कह लें कि पहले से मौजूद जो फैक्ट्स होते हैं, पहले से मौजूद जो डिस्क्राइब चीजें होती हैं, उनको थ्योरी कहते हैं। तो हमने उन थ्योरीज की मदद से ये रिलेशनशिप ड्रॉ करने होते हैं। जब हम थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बना चुके हैं तो फिर हम जाते हैं हाइपोथेसिस की तरफ, लेकिन फिलहाल हम थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क पे बात करते हैं। जी, कंपोनेंट्स ऑफ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। कंपोनेंट्स का मतलब कि थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क जब आप बनाते हैं तो उसके अंदर कौन कौन सी चीजें आपको चाहिए होती हैं, तो इस पे तो हम बात कर चुके हैं। अ गुड थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क आइडेंटिफाइज एंड लेबल्स इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स। सबसे पहले तो उसमें वेरिएबल्स होने चाहिए, फिर उन वेरिएबल्स के दरमियान कनेक्शन क्या होना चाहिए। सबसे पहले हमारे पास जो है वो इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स आपने निकाल लिए, फिर उन इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स के दरमियान कनेक्शन कि इनमें से कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल बनेगा, कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल बनेगा, कौन सा मॉडरेटर वेरिएबल बनेगा, या कौन सा मीडिएटर वेरिएबल बनेगा, दिस वन, ठीक है। और जब आपने ये रिलेशनशिप निकाल लिया तो उसके पीछे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, कोई ना कोई थ्योरी का एग्जिस्ट करना लाजमी है। आप विदाउट थ्योरेटिकल रिलेशनशिप, विदाउट थ्योरी आप उन वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप नहीं बना सकते। कीप इन माइंड, आप ये बात जहन में रखें कि अगर आपने वेरिएबल तलाश कर लिए और उन वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप बना दिया, और अगर वो रिलेशनशिप थ्योरी की सपोर्ट के बगैर हुआ तो आपकी रिसर्च सक्सेसफुल नहीं होगी। ये थ्योरी कोई नई चीज नहीं है। ये थ्योरी क्या है? वही थ्योरीज जो आपने अपने पिछले सब्जेक्ट्स में पढ़ी हैं, जैसे थ्योरी एक्स, थ्योरी वाई, आपने लीडरशिप थ्योरीज पढ़ी हैं, आपने मैस्लोस की थ्योरी पढ़ी है,
आपने जो है वो सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी पढ़ी है, आपने एलपीसी स्केल पढ़ा है, आपने फील्डर स्केल पढ़ा है, आपने जो है वो माउंट ब्लैक का थ्योरी पढ़ी है। ये वही थ्योरीज हैं, कोई नई थ्योरीज नहीं है। ये सारे वेरिएबल्स जो होते हैं आज की प्रॉब्लम्स में एग्जिस्ट करते हैं, ये सारे वेरिएबल्स वहां पर डिफाइंड होते हैं। हम ये सारे वेरिएबल्स वहीं से उठाते हैं, ये सारी सिचुएशंस हम वहीं से उठाते हैं। तो कीप इन माइंड कि आप वेरिएबल्स का रिलेशनशिप जो बनाते हैं, जो वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं, आपको किसी थ्योरी के टेनेंट्स को, किसी थ्योरी की एग्जिस्टेंस के बगैर आप ऐसा नहीं कर सकते। इसीलिए हम यहाँ पर थ्योरी को इग्नोर नहीं कर सकते। दिस इज द रीजन वी कॉल इट थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। चले मैं ये भी बताता चलूं कि थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क और कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में क्या फर्क होता है। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क वो होता है जो थ्योरी डिफाइन करती है, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क वो होता है जो थ्योरी से रहनुमाई लेकर आप अपने वेरिएबल्स का रिलेशनशिप बनाते हैं। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क वो जो थ्योरी एज इट ही आपको डिफाइन करती है, और आप थ्योरी से रहनुमाई लेकर अपनी ऑर्गेनाइजेशन की सिचुएशन के अकॉर्डिंगली जो वेरिएबल्स का रिलेशनशिप बनाते हैं, उनके दरमियान एक जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क खड़ा करते हैं, उस थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क को कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क कहते हैं। अच्छा, तो इसके अंदर जो उसने कहा कि 5 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, तो ये 5 बेसिक एलिमेंट्स वही हैं जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि एक तो वेरिएबल्स, ठीक है, ये वेरिएबल्स, दिस वन वेरिएबल्स, फिर इन वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप, और रिलेशनशिप की नेचर। नेचर का मतलब कि वो किस तरह के होंगे, डिपेंडेंट कौन होगा, इंडिपेंडेंट कौन होगा, मॉडरेटर कौन होगा, मीडिएटर कौन होगा, और फिर क्लियर एक्सप्लेनेशन ऑफ द वेरिएबल्स और उनके दरमियान रिलेशनशिप्स, और फाइनली स्कीमेटिक डायग्राम। स्कीमेटिक डायग्राम क्या है? ये जो डायग्राम आपको नजर आ रही है, दिस वन, ये स्कीमेटिक डायग्राम है। इसको थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क कहते हैं। जब इस थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क को हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली ढाल लेते हैं तो ये कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क बन जाता है, और इस डायग्राम को स्कीमेटिक डायग्राम भी कहते हैं। ठीक है, ये जो आपको एक स्कीमेटिक डायग्राम का वर्ड नजर आ रहा है, इसको स्कीमेटिक डायग्राम भी कहते हैं। जी, यहां तक कोई प्रॉब्लम है किसी को तो प्लीज मुझे बताएं। है that is variables के how we can define variables in our research. तो see my dears, variables जो होते हैं, थोड़ा सा मैं आपको पहले बता दूं, एक फिगर ड्रॉ करता हूं so that you may understand कि what the variables are. Like देखिए, ये हमारे पास एक वेरिएबल है, ठीक है, इसको हम कहेंगे कि दिस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, IV, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक हो गया। देन ये वेरिएबल जब किसी एक दूसरे वेरिएबल पर इंपैक्ट कर रहा होता है तो उसको हम कहते हैं DV, डिपेंडेंट वेरिएबल, और इसका इंपैक्ट जो है वो हम इस तरह से जाहिर करते हैं, राइट जी। दिस इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड दिस इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल बिकॉज इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज इंपैक्टिंग ऑन टू द dependent variable, or you can say that कि change in one variable may considered as the change in other variable. So these two variables are these are two kinds of variables, like one is independent variable and other is dependent variable. जो tail की side पे होगा, मतलब side doesn't matter कि ये इधर भी हम लिख सकते हैं और ये वाला variable इधर भी लिख सकते हैं, but depends कि where the tail is and where the head is. The tail side is called independent and the head side is called dependent variable. Okay, now we have seen कि earlier कि suppose एक ऐसा वेरिएबल है जो कि इन दोनों वेरिएबल्स के रिलेशनशिप पर इंपैक्ट करता है। एक ऐसा वेरिएबल जो कि इन दोनों वेरिएबल्स के रिलेशनशिप पर इंपैक्ट करता है, और उसको हम कहते हैं मॉडरेटिंग वेरिएबल। वो इंपैक्ट कैसे करता है कि अभी इस केस में अगर हम जो पहला केस ये है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल इंपैक्ट कर रहा है, तो इस केस में ये अकेला वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल पर इंपैक्ट कर रहा है। लेकिन जब मॉडरेटर एक वेरिएबल आ जाता है तो मॉडरेटर एक ऐसा वेरिएबल होता है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ मिलकर ये दोनों इकट्ठे
इकट्ठे इस पर इम्पैक्ट करते हैं तो इट बिकम्स द मॉडरेशन। ये मॉडरेशन बन जाती है जब ये दोनों मिलकर इकट्ठे इम्पैक्ट कर रहे होते हैं, यानी हम इनका जो है वो इफेक्ट, दोनों का इकट्ठा इफेक्ट ले रहे होते हैं। ये नहीं कि ये अलहदा कर रहा है और ये अलहदा कर रहा है तो हम कहेंगे कि ये दोनों, ये मॉडरेशन का केस है, नहीं, हम इन दोनों के इफेक्ट को इकट्ठा कर देते हैं तो ये मॉडरेशन का केस बन जाता है, राइट। इसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं। ये हमारा आ गया जी आईवी, ये हमारा आ गया डीवी। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि एक ऐसा वेरिएबल हो जो कि इन दोनों के दरमियान में मौजूद हो, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पर डायरेक्ट इंपैक्ट ना हो, बल्कि ये इंपैक्ट इस वेरिएबल के जरिए से हो, ठीक है, यानी कि इनका डायरेक्ट में आपस में रिलेशनशिप ना बनता हो, इसके जरिए से रिलेशनशिप बनता हो, तो इसको हम कहते हैं मीडिएटिंग वेरिएबल या इंटरवीनिंग वेरिएबल। मीडिएटिंग वेरिएबल या इंटरवीनिंग वेरिएबल, जैसे ये 4 नंबर पे लिखा हुआ है इंटरवीनिंग वेरिएबल, तो हम इसको मीडिएटिंग या इंटरवीनिंग कहते हैं। क्या मतलब, देखिए अब इसका मतलब ये है कि ये अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल पर इंपैक्ट करना चाहता है तो इसको इसके जरिए से देखा जाएगा कि इसका इस पर इंपैक्ट है, इस मीडिएटिंग का डिपेंडेंट पर इंपैक्ट है, तो इसका मतलब कि ये मीडिएटिंग जो है वो इनके दरमियान जो है वो एक ऐसा किरदार अदा कर रहा है कि ये दोनों एक दूसरे पर इंपैक्ट नहीं करते। अच्छा, इसमें अब डिफरेंट काइंड्स होती हैं, वो आपसे रिलेटेड तो नहीं है फिलहाल, लेकिन चलिए मैं बता देता हूँ कि अगर ये डायरेक्ट भी इंपैक्ट करे और इस मीडिएटिंग वेरिएबल के जरिए भी इंपैक्ट करे, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं पार्शियल मीडिएशन, यानी आगे मीडिएशन की भी इकसाम है। अगर ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल डायरेक्टली भी इंपैक्ट करे और थ्रू मीडिएटर भी इंपैक्ट करे तो हम इसको कहते हैं पार्शियल मीडिएशन, और अगर ये डायरेक्ट इंपैक्ट ना करे और सिर्फ मीडिएटर के जरिए इंपैक्ट करे तो इसको हम कहते हैं फुल मीडिएशन। ये उसकी एग्जाम में आ जाता है, खैर, लेकिन हमने जो है वो मीडिएशन का कॉन्सेप्ट सीखना है। अब देखते हैं कि हमारे नोट्स जो हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं। देखिए जी, डिपेंडेंट वेरिएबल के मुतालिक हमने बात कर दी। डिपेंडेंट वेरिएबल इज द वेरिएबल ऑफ प्राइमरी इंटरेस्ट टू द रिसर्चर, और रिसर्चर का गोल होता है कि वो डिपेंडेंट वेरिएबल को डिफाइन करे, उसकी वेरिएबिलिटी को डिफाइन करे और उसको प्रिडिक्ट करे। वेरिएबिलिटी का मतलब कि उसके अंदर कितनी चेंज आ रही है, जब हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल उस पर इंपैक्ट करता है तो उसके अंदर कितनी चेंज आती है, यानी पहले वो क्या था और जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल उस पर इंपैक्ट कर जाता है तो उसके अंदर कितनी वेरिएशन आती है, इसको प्रिडिक्ट करना जो है वो रिसर्चर का मेन वर्ड जो है वो फोकस होता है। और इन अदर वर्ड्स इट इज द मेन वेरिएबल दैट लैंड्स इटसेल्फ फॉर इन्वेस्टिगेशन। ये एक मेन वेरिएबल होता है जो अपने आप को प्रेजेंट करता है फॉर इन्वेस्टिगेशन। इसके बाद हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो जो कि इम्पैक्ट कर रहा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, इन्फ्लुएंस कर रहा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल पर। और ये मैंने आपसे गुजारिश की कि जैसे एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, यानी बहुत सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल्स पर इंपैक्ट कर रहे होते हैं, बहुत सारे इंडिपेंडेंट्स वेरिएबल पर इंपैक्ट कर रहे होते हैं। तो ये कोई जरूरी नहीं होता कि हमने एग्जांपल एक एक की ली है तो ये एक एक ही वेरिएबल होता है, नहीं, ये ज्यादा वेरिएबल्स भी होते हैं, एट अ टाइम बहुत सारे वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। अच्छा जी, इसमें हम इन अदर वर्ड्स द वेरिएंस इन द डिपेंडेंट वेरिएबल इज अकाउंटेड फॉर बाय द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल पहले क्या था, लेकिन जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल ने उस पर इंपैक्ट किया तो उसके अंदर जो चेंज आई, जो इन्फ्लुएंस उसने किया, उसके अंदर चेंज आई, उस चेंज का जिम्मेदार कौन होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी डिपेंडेंट वेरिएबल में जो चेंज आती है उसकी चेंज का जिम्मेदार कौन होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो लेफ्ट साइड पे पड़ा होता है, टेल साइड पे। इसके बाद है जी मॉडरेटर। मॉडरेटर की जो है वो हमने फिगर तो देख ली कि मॉडरेटर होता कैसे है, तो इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए इसकी एग्जांपल में लिखा हुआ है, सपोज कर लेते हैं कि अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हैज बीन ऑब्जर्व्ड बिटवीन क्वालिटी ऑफ लाइब्रेरी फैसिलिटीज एंड द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स, यानी एक रिलेशनशिप पाया जाता है बिटवीन लाइब्रेरी का स्टैंडर्ड कैसा है, ठीक है, और
जितना अच्छा लाइब्रेरी का स्टैंडर्ड होगा उतनी स्टूडेंट की परफॉर्मेंस अच्छी होगी, यानी जितना लाइब्रेरी का स्टैंडर्ड अच्छा होगा उतनी स्टूडेंट की परफॉर्मेंस अच्छी होगी। तो ये एक रिलेशनशिप बनता है। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ गया और ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल आ गया। ठीक हो गया। अब मुझे एक बात बताइए कि लाइब्रेरी हम जितनी मर्जी अच्छी बना दें, हम लेविश सारी किताबें, फैसिलिटीज, एसी, लैपटॉप्स, इंटरनेट, हर चीज उसके अंदर लगा दें, तो क्या सिर्फ ऐसा करने से ही परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी स्टूडेंट की? हाँ, अगर स्टूडेंट जाए, अंदर पढ़े, इंटरेस्ट ले, तो फिर तो होगी। अब अगर स्टूडेंट लाइब्रेरी का रुख ही ना करे, उसकी शक्ल ही ना देखे, तो फिर लाइब्रेरी जितनी मर्जी आप अच्छी स्टैंडर्ड कर लें, वो तो कोई उस पर इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा। हाँ, एक रिलेशनशिप बनता है कि जहां बहुत सारी चीजें और भी इम्पैक्ट कर रही होती हैं स्टूडेंट परफॉर्मेंस पे, उसमें एक किरदार लाइब्रेरी परफॉर्मेंस का भी होता है। तो लाइब्रेरी परफॉर्मेंस, लाइब्रेरी स्टैंडर्ड जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और स्टूडेंट की परफॉर्मेंस जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। लेकिन ये वेरिएबल और बहुत अच्छा हो सकता है, ये रिलेशनशिप और बहुत अच्छा हो सकता है। कब? When it means that only those students who have the interest and inclination to use the library will show improved performance। यानी ये उन्हीं लोगों की परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, उन्हीं बच्चों की परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी जिनका इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट। इसका मतलब ये हुआ कि अकेला ये वेरिएबल उस तरह से इंपैक्ट नहीं करता। अगर ये दोनों मिलकर, दोनों का कंबाइंड इफेक्ट जो है वो इस पर इंपैक्ट करे, तो फिर ये सही मानों में इसकी जो है वो इंपैक्ट आएगा। फिर सही मानों में पता लगेगा कि परफॉर्मेंस पे क्या इंपैक्ट आता है। यानी ये दोनों वेरिएबल मिलके इकट्ठा इंपैक्ट करें, मॉडरेशन में ये दोनों मिल जाए, तो दिस इज कॉल्ड मॉडरेशन। ठीक है, कि जिसमें हम इस तरह से ये वेरिएबल इन दोनों के रिलेशनशिप पर इंपैक्ट करे, और मतलब क्या होगा कि हमने इन दोनों का इकट्ठा इंपैक्ट जो है वो इस पर देखना है। राइट, दिस इज कॉल्ड मॉडरेशन। इसके बाद है जी मीडिएशन। मीडिएशन के अंदर एक मिनट जी, यस, मीडिएशन या इंटरवीनिंग वेरिएबल्स। इंटरवीनिंग वेरिएबल्स जो हमने इस पे बात कर ली कि ये वेरिएबल्स जो होते हैं, लाइक आपके पास इस तरह से एक वेरिएबल है इंडिपेंडेंट, एक आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, और इन दोनों का हम इम्पैक्ट जो है वो डायरेक्ट नहीं देखते, बल्कि एक वेरिएबल दरमियान में हम प्लेस करके फिर इनका इम्पैक्ट देखते हैं। तो दिस इज कॉल्ड मीडिएशन वेरिएबल। तो इसमें जो एग्जांपल दी गई है, थ्योरी ऑफ सुसाइड स्टेट्स दैट मैरिड पीपल आर लेस लाइकली टू कमिट सुसाइड देन single people. The assumption is that married people have greater social integration. A major cause of one type of suicide was that people lack of sense of belonging to the family. This theory can be stated as three variables relationship: marital status independent variable आ गया, और marital status अगर जो है वो सिंगल है तो सुसाइड ज्यादा है, अगर मैरिटल स्टेटस सिंगल है, शादीशुदा नहीं है, तो सुसाइड ज्यादा है। ठीक है, अगर कोई बंदा या बंदी मैरिड है तो उसकी सुसाइड की रेशो लेस है। ठीक है, लेकिन इनके दरमियान में वेरिएबल जो है इंडिपेंडेंट कॉजेज द डिग्री ऑफ सोशल इंटीग्रेशन। डिग्री ऑफ सोशल इंटीग्रेशन यानी उसकी एफिलिएशन का लेवल क्या है, यानी उसकी अपनी फैमिली के साथ जितनी एफिलिएशन होगी उतना ज्यादा जो है वो इसकी फैमिली का एफिलिएशन, इस पे हम इम्पैक्ट देखेंगे, और एफिलिएशन का फिर सुसाइड पे इम्पैक्ट देखेंगे, तो ये इम्पैक्ट तकरीबन 0 पे आ जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, यानी ऑलमोस्ट निग्लेक्टेबल हो जाएगा। यानी अगर कोई जो है वो मैरिड है या सिंगल है, अगर उसका फैमिली एफिलिएशन बहुत ज्यादा है, फैमिली के साथ रिलेशनशिप, फैमिली के साथ कोऑर्डिनेशन, फैमिली के साथ एफिलिएशन बहुत ज्यादा है, पहले तो हम इसका इम्पैक्ट देखेंगे। अगर ये एफिलिएशन बहुत ज्यादा है, यानी सिंगल हो, मैरिड हो, कुछ भी हो, अगर एफिलिएशन ज्यादा आ रही है, तो ये वाला जो काम है ये लेस हो जाएगा, क्योंकि अब हम ये जो मैरिटल स्टेटस का रिलेशनशिप है ये हम इस दरमियानी एक वेरिएबल की मदद से देख रहे हैं, और ये इस दरमियानी वेरिएबल को कहते हैं इंटरवीनिंग वेरिएबल। जी, इसके बाद हमारे पास ये कंटिन्यूअस वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स दैट हैव प्रॉपर्टीज, एंड to these variables we assign numerical values. If values of a variable can be divided into fraction, then we call it continuous
वेरिएबल्स। सच अ वेरिएबल टेक अ फाइनाइट, जब हम किसी नंबर को कोई वैल्यू दे देते हैं, मसलन कुछ वेरिएबल्स हमें ऐसे अपनी स्टडी में यूज करने पड़ते हैं जैसे एज। तो एज हम डायरेक्ट, एज एक वेरिएबल है। इनकम हम किसी से पूछते हैं तो मुख्तलिफ लोग अपनी इनकम बताएंगे, तो दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूअस वेरिएबल। टेम्परेचर के टेम्परेचर कितना रहा, तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कंटिन्यूअस वेरिएबल्स। Discontinuous variables, any variable that has a limited number of distinct values and which cannot be divided into fractions। यानी यहाँ पे हम फ्रैक्शन दे सकते हैं, कोई कहता है मेरी एज 4 साल है, 5 साल है, कोई कहता है 37.5 टेम्परेचर है, कोई कहता है मेरी 2.5 साल एज है, मेरा टेस्ट स्कोर कितना है, मेरे 5.5 6.5 नंबर आए, तो वी कैन गिव फ्रैक्शंस। दीज आर द, वी कैन गिव द वैल्यूज, दीज आर द कंटिन्यूअस वेरिएबल्स। और जिनको हम वैल्यू नहीं दे सकते वो क्या है, वो हमारे जो है वो डिसकंटिन्यूअस वेरिएबल्स हैं। For example, जी, some variables they have only two values reflecting the presence or absence of a property, employed or unemployed, male or female. These variables are referred to as dichotomous variable। यानी ऐसे variables होते हैं जिनकी options ही दो होती हैं। जैसे सेक्स की बात करें तो सेक्स में दो ही लोग होते हैं, मेल या फीमेल। ऑल्दो अब और लोग भी शामिल हो गए हैं, ट्रांसजेंडर्स को भी शामिल किया जा रहा है। तो ये फिक्स्ड वैल्यू जब होती है, दो ही पॉसिबिलिटीज होती हैं, तो उसको हम कहते हैं डाइकोटमस वेरिएबल। जैसे एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, एम्प्लॉयड होगा या अनएम्प्लॉयड होगा। प्रॉपर्टी जो है वो एब्सेंस ऑफ प्रॉपर्टी होगी या प्रेजेंस ऑफ प्रॉपर्टी होगी। अच्छा, there other can be take added categories such as demographic variables, race, region, religion. All such variables that produce data fit into categories are said to be discrete variables या categorical variables या classificatory। ठीक है। और यानी आप ये समझ लीजिए कि थोड़ा मैं आपको ये बताता हूँ, लाइक ओके, सपोज आप एक नंबर पे रख देते हैं जी लाहौर, आप 2 नंबर पे रख देते हैं जी फैसलाबाद, आप 3 नंबर पे रख देते हैं लाइक कराची, आप 4 नंबर पे रख देते हैं इस्लामाबाद। ठीक है। अब ये 4 5 6 7 आपने एक ऑप्शन दे दिया, आप कहते हैं जी आप किस सिटी में रहते हैं, मैं कहता हूँ जी मैं लाहौर में रहता हूँ या मैं फैसलाबाद में रहता हूँ या मैं कराची में रहता हूँ। तो इसका मतलब 3 नंबर का क्या मतलब होगा, कराची। इसका सिर्फ मतलब है, ये सिर्फ एक वैल्यू है, नथिंग। ये 3 का मतलब हमेशा कराची नहीं होता, ये 3 का मतलब हमेशा जो है वो लाहौर नहीं होता, या 1 का मतलब लाहौर नहीं होता। ठीक है, ये 3 इज जस्ट अ सिग्निफिकेटरी वैल्यू, ये एक सिग्निफिकेंस है, इसके अलावा इसकी और कोई माने नहीं है। तो ये मैं कराची ऊपर भी कर सकता हूँ, फैसलाबाद नीचे कर सकता हूँ, लाहौर नीचे कर सकता हूँ। तो ये ऐसे वेरिएबल्स जिनसे हम जो है वो डिसकंटिन्यूअस वैल्यूज लेते हैं। अब ये डिसकंटिन्यूटी है, ये नंबर्स जो है इनके लिए कोई माने नहीं रखते। लेकिन कंटिन्यूअस वेरिएबल में अगर कोई कहता है कि मेरी एज 6 साल है, तो वो 6 माने रखता है। कोई कहता है मेरी एज 30 साल है, वो 30 एक माने रखता है। लेकिन यहां पर ये नंबर कोई मानी नहीं रखती, इट इज जस्ट अ सीरियल नंबर। ठीक है, तो ऐसे वेरिएबल्स जो होते हैं उनको हम डिसकंटिन्यूअस वेरिएबल कहते हैं। और अगर ऐसे वेरिएबल्स जिनके अंदर ऑप्शंस ही दो हों, जैसे हमने सेक्स के केस में देखा, जैसे हमने एम्प्लॉयमेंट के केस में देखा, जब ऑप्शंस ही दो हों तो उनको हम डिसकंटिन्यूअस वेरिएबल तो कहते हैं, उनको हम कैटेगोरिकल वेरिएबल्स तो कहते हैं, उनको हम डिस्क्रीट वेरिएबल्स तो कहते हैं, लेकिन साथ ही साथ हम इनको डाइकोटमस वेरिएबल्स भी कहते हैं। ठीक हो गया जी। देन इट कम्स